یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آج کے پروگرام کے موضوعات میں شامل ہے کہ کابل میں صدارتی محل کے قریب راکٹوں سے حملہ کیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، افغان سفیر کی بیٹی سلسلہ علی خیل کی اغوا کی جو واردات ہے وہ ابھی اسٹل اس کا معمہ حل نہ ہو سکا، جبکہ خطے میں طالبان کی پیش رفت کے ساتھ ہی علاقائی ملکوں کی سرحدوں پر تناؤ بڑھ گیا ہے۔ دوحہ میں جو ہے وہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ہے بات چیت بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے علاوہ ترکی کا جو ہے کابل ایئرپورٹ کی سلامتی سنبھالنے کا اعلان۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس سے بات سٹارٹ کریں، آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ کیا کہیں گے ہو کیا انٹرنیشنلی؟ دیکھیں، طالبان کی جس تیز رفتاری سے طالبان نے افغانستان میں پھیلے ہیں، اس کا اندازہ نہ امریکہ کو تھا، نہ نیٹو کو تھا، نہ پاکستان کو اتنا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حیران کر دیا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ امید تھی کہ افغان فوج جو کافی ٹرینڈ ہے، جس میں 50,000 کے قریب جو اسپیشل ٹرپس ہیں، ان کی ایئر فورس بھی ہے، وہ کافی اسٹرانگلی مزاحمت کر سکے گی۔ اچھا، اور انہوں نے روکا بھی ہے، کئی اضلاع واپس بھی لیے ہیں، اور مقامی ملیشیا کے ساتھ مل کے وہ لڑ بھی رہے ہیں طالبان کے خلاف۔ لیکن طالبان نے سارے جو افغانستان سے بری راستے ہیں، بھلے وہ ترکمانستان کے ساتھ ہے، بھلے ازبکستان، تاجکستان، ایران اور چمن کا بارڈر، سوائے تورخم بارڈر کے، انہوں نے وہ بھی اب ٹریڈ، تجارت، کاروبار اور ٹیکس بھی انہوں نے لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج آ گیا ہے اوکے، کہ اب ان کا ہمارا پاکستان کا افغانستان میں سوائے طالبان کے دوست نہیں ہے، اور طالبان اگر اسی طرح پیش رفت کر کے کابل پہ قابض بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ انہیں دہشت گرد ریاست قرار دیا جا سکتا ہے۔ دنیا انہیں وارننگ دے رہی ہے کہ بزور طاقت قبضہ نہ کرو، لہذا کابل پہ وہ قبضہ کرنے سے اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اب سارے انڈے طالبان کی باسکٹ میں، ایک ہی باسکٹ، اور طالبان کے ساتھ پاکستان تحریک طالبان بھی شامل ہے، ان کے اس میں اور بھی جہادی گروپ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مہمان ہیں، لیکن ہم انہیں کسی ملک کے خلاف کارروائی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا امریکیوں سے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے۔ آج کابل میں آپ دیکھیں 3 راکٹ سے حملہ ہوا ہے۔ ابھی بات چیت دوحہ میں کل ختم ہوئی تھی، گزشتہ روز ختم ہوئی تھی، اور اس بات چیت میں معاملہ کہاں پھنس گیا؟ افغان حکومت چاہتی تھی کہ سیز فائر کیا جائے، طالبان کہتے ہیں سیز فائر کرتے ہیں، 3 مہینے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے 7,000 جنگجو چھوڑو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی طالبان سنبھالے نہیں جا رہے، ان سے 7,000 جنگجو چھوڑ دیں، ان کو گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اب عید پہ بھی وہ جو 3 دن کی خیال تھا کہ وہ سیز فائر کر دیں گے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ البتہ یہ طے ہوا ہے، مشترکہ بیان جاری ہوا ہے کہ بات چیت کو تیز کیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر نہیں ہوگی۔ طالبان سیز فائر کیوں کریں گے جب وہ پیش رفت کر رہے ہیں؟ وہ زیادہ علاقہ لینا چاہیں گے، اور افغان حکومت چاہتی ہے کہ سیز فائر فوراً ہو جائے، کیونکہ اس کا فائدہ افغان حکومت کو ہوگا، اور پھر افغان حکومت جوابی کارروائی میں کرے گی زیادہ شدید، تاکہ طالبان کی پیش رفت کو روکا جا سکے، اور طالبان مجبور ہوں کہ اچھا اب تو سٹیل میٹ آ رہی ہے، جنگ میں بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو اب اسی اسنا میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا ابھی اسلام آباد میں اس بچی کا افغان سفیر کے سلسلہ علی خیل کا جو اغوا ہوا ہے، اس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ گو کہ شیخ رشید اور ہمارے جو 3 وزیر خارجہ اور آئی جی کی پریس کانفرنس تفصیلی اس پہ آئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا اغوا کا معاملہ، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم شیئر کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ بار بار افغان حکومت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے ہم آپ سے اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کا دنیا بھر میں بہت خوفناک قسم کا ایک رد عمل ہوا ہے اور منفی پیغام گیا ہے۔
काफ़ी डैमेज हुआ है, उसे इस्तेमाल पाकिस्तान भी के किया है। हक में अच्छा नहीं हुआ। इस पे इंडियन मीडिया ने भी इस्तेमाल किया है, और ये जो जाली वेबसाइट्स हैं वॉरफेयर की, जो साइबर वॉरफेयर हो रही है, उसमें इसे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ताल्लुका ख़राब हो गए। ताल्लुका ज़्यादा ख़राब हुए हैं ताशकंद में, जहाँ तो इमरान पहले खान खराब थे, और बिल्कुल। और अशरफी ने इमरान खान पे ये अगवा का पाकिस्तान पे- वाक़या तो चेरी ऑन द टॉप हो गया, ताल्लुका तो पहले भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो 26 तारीख को मीटिंग हो रही थी वो मुलतवी हो गई। मैं नहीं समझता कि अफगान हुकूमत बड़ी इनकरेज करेगी पाकिस्तान के रोल को। अब मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ क्या? कि अमरीकी ज़्यादा सेंट्रल एशिया की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, वो जो अफगानों को निकालना चाह रहे हैं, उन्हें पहले सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं। और आप हैरान होंगी कि पुतिन ने अपनी मुलाकात में ऑफ़र कर दी थी, अभी तक अमरीकियों ने जवाब नहीं दिया, जो हमारे अड्डे हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में, वो आप इस्तेमाल कर लें, ओके। हम आपको फैसिलिटी देने के तैयार हैं। बदलता है रंग आसमान, कैसे और कैसे? साथ ही ये कि तुर्की के सदर साहब जो है वो हाँ जी बिल्कुल, वो क्या मैदान सिलसिला वकूफ़ है? में हैं। हाँ, वो कहते हैं काबुल का हम अमरीकी चाह रहे हैं कि तुर्की एयरपोर्ट का चार्ज ले ले, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की बड़ी अहमियत होगी, अच्छा, वाई टर्की, इसलिए कि एयरफोर्स की कार्रवाई के लिए भी और ख़ुद दुनिया से राब्ते के लिए भी, ओके। सफ़ीरों के लिए, दुनिया के वफूद के लिए, आलमी राब्ते के लिए अफगान हुकूमत के साथ वो काबुल एयरपोर्ट का खुला रहना बड़ा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, ठीक है। लेकिन उसमें तुर्की के सदर बड़ी शराइत लगा रहे हैं मतलब कि ये नहीं कि हम फंस जाए इसमें, और ये कि हम आपकी बला क्यों उठाएं, और ये कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये कि बल्गारिया और नेटो के और एक दो मुल्क भी में से शामिल हो, और ये कि अमरीकी अच्छा, हैरत ने पाकिस्तान को नहीं कहा, पाकिस्तान को ऑफर नहीं करवाया अब उन्होंने? पाकिस्तान को देखिए ना, पाकिस्तान में तो सफारती हमारे सफ़ीर भी नहीं अमेरिका का, और चार्ज डी अफेयर से काम चल रहा है, बिल्कुल। और पाकिस्तान से कोई बड़े राब्ते भी नहीं हो रहा है, कोई अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के या सलामती के मशीर के या उनके पेंटागन के चीफ के या वो किसी के सेक्रेटरी दिफा, किसी का राब्ता नहीं हो रहा, अरसा हुआ राब्ता हुआ था। अब मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलर्ट है इस वक्त, दहशतगर्दी का ख़तरा है, और तुरखम पे और पाक अफगान बॉर्डर पे फ़ौज लगाई गई है, और दहशतगर्दी का ख़तरा है बड़ा, बहुत बड़ा। इसी तरह रूस और तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अब मुश्तरका वहाँ पे मशक़ें कर रहे हैं, हमारी फ़ौज भी बॉर्डर पे लग गई है। सही। तो ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से। अब ऊपर से ये बच्ची का वाक़या हो गया, जो बड़ा इस्तेमाल हुआ है। अब हमें उस बच्चे से बड़ी हमदर्दी है, जिस तरह के हम विक्टिम की को नहीं ब्लेमिंग जो है इज नॉट द राइट थिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला, इसकी पूरी तहकीकात सामने आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत ख़राब हुए हुए हैं। अशरफ गनी की, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इनकाउंटर हुआ है ताशकंद में, बाज़ पाकिस्तान को अपनी मीटिंग मुलतवी करनी पड़ी है। अब क्या पाकिस्तान, तालिबान तो कह रहे हैं पाकिस्तान के आ जाएंगे, लेकिन क्या ये अफ़गान जो रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल है, जिसकी अब्दुल्ला हेड करते हैं, या जिसमें और बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, और जिसमें पुराने मुजाहिदीन भी हैं, पाकिस्तान में उनसे कांटेक्ट है, सही। क्या वो भी आ सकेंगे? ये नहीं आ सकेंगे। तो मुझे तो लगता ही है कि ये कोशिश है अशरफ गनी हुकूमत की कि पाकिस्तान के रोल को स्कटल किया जाए, कम किया जाए। अब हमारी सारी डिपेंडेंस तालिबान पे हो गई है, ठीक। और अगर तालिबान कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की बहुत बड़ी लहर आएगी। कोई 34 लाख जो आलमी रिफ्यूजीज़ की जो तंजीम है, उसका एस्टिमेट है कि कोई 34 लाख के करीब लोग अपरूट होंगे। अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में लोग घरों से बेघर हो गए हैं, और इकोनॉमिकली पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इकोनॉमिकली? और अभी तो ये कह रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है, लेकिन ये आएंगे। ख़ुद यूएन ने जो रिफ्यूजीज़ के लिए 3.5 लाख का उन्होंने पैसे मांगे हैं यूएन से इंतजाम करने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से 35 लाख तक रिफ्यूजीज़ अपसेट होंगे अगर ये सिविल वॉर बढ़ी और कोई मामला सेटल ना हुआ। अब दोहा में जो बातचीत थी, वो उसके बाद जो एलामिया आया है, उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी हम बातचीत तेज़ करेंगे और जल्दी मिलेंगे। ये अच्छी बात है कि इत्तफाक है और बातचीत पे संजीदगी ली जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी फरीकैन कुछ मामला जंग के मैदान में तय करना चाहेंगे। अच्छा। तालिबान का ये कोशिश है कि वो बातचीत में जब जाएं तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ जाएं, वो ज़्यादा इलाकों पे कब्जा करेंगे।
काबुल पे वो अभी कब्जा नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया भर की तरफ से उन्हें सख्त बात। लेकिन लास्ट टाइम आपसे बात जब हुई थी इस हवाले से तो आपने कहा था कि तालिबान इस दफ़ा जो है कंसिडर कर रहे हैं कि उनको आलमी जो है हमायत हासिल हो। वो कोशिश तो कर रहे जंग हैं, की वो ये सूरत चाह में रहे हैं, वो सबके साथ नहीं, रास्ते तो में जंग हैं। की सूरत में आलमी हमायत कैसे हासिल होगी? नहीं, उन्हें अगर वो जाएंगे काबुल में ज़बरदस्ती हमला करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। ठीक है। और ये खत्ते के मुल्क तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ईरान को बड़ी तशवीश है, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान को बड़ी तशवीश है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने जो सारा अपना जोर पड़ने में डाले रखा है अफगान तालिबान के, बज़ाहिर हम पोजीशन लेते हैं कि जी हम तो न्यूट्रल है और हम तो अमन चाहते हैं और हमारा, लेकिन सब दुनिया जानती है कि हमने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया है और उन्हें बचा के रखा है और ये चीज़ अब हमारे गले पड़ने जा रही है और इसके पाकिस्तान पे बड़े गहरे रिपरकशंस होंगे। मजीद क्या ये सोचा गया था मुशर्रफ के ज़माने से और उससे पहले से ज़ियाउल हक के ज़माने से, ये एक अफगान पॉलिसी जो चलती रही है, क्या इसका कहीं रिव्यू किया गया है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं? 70,000 लोग हमने मरवा दिए हैं, 5,000 अपने फौजी शहीद करवाए हैं और उसके नतीजे में तालिबान आज आप देखें उसका फ़ायदा तालिबान को मिला है और अब हम उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं, कैसे इनकार कर सकते हैं और इसके हमें रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो अफगान हुकूमत कतई तौर पे नहीं पाकिस्तान के किसी तरह का रोल चाहती और वो अशरफ गनी की बातचीत से हमें उसका अंदाज़ा हो गया, ऊपर से बच्ची का वाक़या हो तो अभी तुर्की का इसमें एंटर होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन हल ये है कि जो इलाके के मुल्क हैं वो इस पर कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है। इसमें उज़्बेकिस्तान भी हो, ताजिकिस्तान भी stakes हो, involved कजाकिस्तान हैं। भी हो, उसमें चाइना भी हो, उसमें रूस भी हो, उसमें ईरान भी हो और उसमें पाकिस्तान भी हो और ये और अफगान फरीक बैठे और ये एक कश्मीर इस पर मेडिएट करें क्योंकि इस वक्त वहाँ पे सालिस कोई नहीं रहा। पहले अमेरिका के जाने के बाद खला पैदा हो गया, उस खला को तालिबान पुर कर रहे हैं। इम्तियाज़ साहब मुझे एक चीज़ बताइए, अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है, अफ़गान हुकूमत अशरफ गनी की और जो तालिबान है, क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो इलाके के बाकी ममालिक हैं वो उन पर कोई उनका जोर नहीं चल नहीं, रहा? वो तो देखिए ना, ये हुकूमत तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा अभी भी और सारे पैसे वहाँ से मिल रहे हैं। अब तो उनका वो रेवेन्यू भी बंद हो गया है जब ये सारे कब्जा हुआ है तजारती रास्तों पे, तो लिहाजा और डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो कौन सपोर्ट कर रहा है इनको कि ये बावजूद अमरीकी यकीनन मुझे लगता ही है कि शायद अमरीकी भी चाहते हैं कि तालिबान जो है वो काबिज हो जाए ओके और वो तालिबान को कोऑप्ट कर लें। ऑलराइट। क्योंकि आखिर वो किस घोड़े पे वहाँ पे बैठ करेंगे क्योंकि लगता ही है कि जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो बहुत अंदरूनी तौर पे खलफशार का शिकार है। काफी कमजोर अगर उसमें सेंट्रल कमांड मजबूत होती, उनकी फौज की कमांड तकड़ी होती और फौजी उसका एहतराम करते और डिसिप्लिन को मान रहे होते तो ये इतना क्राइसिस ना बनता। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि देखिए अगर अब प्रीवियस प्रोग्राम्स में जब आपने जिक्र किया है तो अमेरिका का रुझान जो है भारत की तरफ ज़्यादा है। भारत अशरफ गनी की हुकूमत पे जो है बैठ कर रहा है जो कि कमज़ोर घोड़ा है और अगर अमेरिका जो है वो अगेन अफगान जो तालिबान है उन पर बैठ कर रहे हैं तो कौन किसके अगेंस्ट खेल रहा है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत बड़ी गेम हर एक के मुख्तलिफ मकासद हैं। मुझे शक पड़ता है, बल्कि ये मेरा शक यकीन मिलता जा रहा है कि शायद अमरीकी और तालिबान को कोऑप्ट कर लेंगे। अच्छा। और फिर उनके ज़रिए से वो पुलिसिंग करेंगे तालिबान में या वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अनासार के ख़िलाफ़ उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनसे उन्हें ख़तरा हो। सिर्फ अफ़गानिस्तान में या बाकी खित्ते के बाद दीगर ममालिक पर भी? देखिए वो इससे सेंट्रल एशिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइना के खिलाफ मेनली चाइना से देख रहा कम्पीट था है। चीनियों ने वहाँ पे बड़ी फौजी अपनी चौकी बना दी है, हालांकि 60 किलोमीटर का बॉर्डर है चीन का और अफगानिस्तान का। सही। लेकिन वो लगता है उन्हें भी ख़तरे की घंटियाँ मिली हैं। तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो खित्ते के मुल्क मिलकर कोई पहलकदमी करे, दूसरा यूएन इसमें आए। ओके। क्यों नहीं यूएन की फोर्सेस आ सकती हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, ये गई हैं कई मुल्कों में। ये लीबिया जैसा क्राइसिस मुझे बनता नज़र आ रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर ये हुआ कि तालिबान काबुल पे काबिज हो गए और हम तालिबान के साथ खड़े हो गए, जैसे कि हमारे पास फेट कंपनी बन जाएगी और कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो फिर अगर अमेरिका ने तालिबान को ना अपनाया तो फिर हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अच्छा, बहरहाल अभी के लिए आपकी दोनों बातें काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं, लेकिन लेट्स होप आई गेस कंफ्यूज करने की बात नहीं है। क्योंकि मैं तो बड़ी देखिए उनका भूत जो है ना तालिबान का वो छाने जा रहा है अफगानिस्तान, ठीक है, और उसके असरात
ड्यूरल लाइन के इस पार भी आएंगे बिल्कुल ठीक है। और खौफनाक आएंगे। नहीं, लेकिन अगर अमेरिका जैसे आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि शायद वो कभी छत्तर छाव में ले लें तालिबान को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान एक ही वेव लेंथ पे नहीं आ जाते? उसमें मुझे देखें ना, वेव लेंथ उसमें क्या एक बनेगी, शायद मकसद एक हो जाएगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इसमें से निकल जाना साइड किया चाहिए। जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी कुछ ज़्यादा एंगेज नहीं कर रहा है। हम ऐसी शोर शराबा आपको कर लगता है रहे उसकी थे, अंडे वजह- मांग रहे हैं और हमने इनकार कर दिया। आपको लगता है इसकी वजह जो है, क्योंकि प्रीवियस हुकूमतों में तो अमेरिका और पाकिस्तान जो है काफ़ी शाना बशाना लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आपको लगता है मौजूदा हुकूमत इसकी वजह है, पीटीआई हुकूमत के बाईस उनको साइडलाइन पाकिस्तान को किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की 20 साल के साथ अमेरिका का इस मामले में साथ चल रहा था और कई सालों से ये खराब हो गया। अमेरिकी अब पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते। Okay. हम उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हम अमेरिका के साथ हम तरफा ताल्लुका बनाना चाहते हैं, हमारी बड़ी गालें टपकती हैं क्योंकि हम अमेरिका के बड़े पुराने इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों के बड़े इत्तेहादी बिल्कुल ठीक। हैं, मोस्ट एलाइड ऑफ द एलाइज। हमारी एक जनरेशन ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो है अमेरिका के खातिर लड़ी है, आप क्या बस कर फिर रहे अब हैं? आप भुगते हो। चलें जी, अब that's it. भुगतने का वक्त है और हमें इस बारे में अपनी परेशानी को शेयर करना चाहिए, और ये कि पाकिस्तान को अब इलाके के मुल्कों के साथ मिलकर और यूएन को भी को भी हम एंगेज करें, Okay. क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी अफगानिस्तान बनने जा रहा है फिर से। सही, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके तबसरे का। अभी के लिए वक्त हुआ जाता है इसके साथ ही कि आपसे इजाज़त ली जाए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।